Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Hello everyone and welcome to Chief Executive. I'm of course Jugan Kazim, your host, and today we're going to be meeting Mr. Zahid Qamar. Now he's the chairman of Pak China Citizen Association for now. The reason I say for now is because the man, as we're going to find out in the interview, has done a lot of stuff in his life and has been a member of many different associations and many different things, and I think he likes to keep his hand in a lot of different pies. But for now this is what he's doing, and let's see what his future plans are and what he's done in the past. So let's go ahead and meet Mr. Zahid. Hello Zahid, how are you doing? Fine, thank you. Number one, welcome to the show. Thank you. And my first question to you would be, what is Pak China Citizen Association exactly? Basically, I'd like to tell you that it is my dream. Okay. Which I had in 1979. It was मेरी पहली दफ़ा थी कि मैं जहाज़ में भी यूँ समझे कि पहली दफ़ा ही जहाज़ में बैठा और सीधा चीन उतरा था. तो व्हाट आई सॉ ओवर देयर, वो मेरे जहन में एक नक्श, क्योंकि मेरे लिए एक नई दुनिया थी. मैं कभी बाहर नहीं गया, बल्कि यूँ समझिए कि कराची से भी बाहर नहीं निकला था. मेरे लिए टोटली नई दुनिया थी. In 1979, the revolution, the economic revolution was just passed in 1978. अभी उस पे इम्प्लीमेंट होने थे. बट आफ्टर दैट इन 1983 को 3-4 साल के वक्फे से जब मैं दोबारा गया तो वो डेवलपमेंट शुरू हो चुकी थी. दैट थिंग केम इन माई माइंड के इस थोड़े से अरसे में अगर चाइना इतना बदल सकता है तो क्यों नहीं हम भी इस चीज़ को अडॉप्ट करते हुए पाकिस्तान में इसकी कुछ इम्प्लीमेंटेशन अगर हम कर लें तो शायद हम कुछ कामयाब हो जाएं. उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने उस दौर में पाक चाइना यूथ फ्रेंडशिप सोसाइटी की बुनियाद रखी थी. अच्छा. क्योंकि एट दैट टाइम आई वाज अ यूथ एंड आई थिंक यूथ इज अंडर 40. Oh, under 40? Under 40 I is thought a it was youth. under 20, No, but that's just me. No. Under 40, according to the rule, it's youth. I was just joking. Yeah. अच्छा. तो उसके बाद हमने उस यूथ में जो हमने अपनी जो सरगर्मियाँ रखी वो ज़्यादातर कल्चर पे रखी. सो दैट द पाकिस्तान पीपल, स्पेशली आवर फोकस वाज ऑन द स्कूल्स, चूँकि यही हमारी कमिंग अप जनरेशन है और इसी ने आगे हमारी बागडोर संभालनी. Before we get into that, I guess मैं ज़्यादा ये जानना चाहती हूँ कि आपने start किस तरह किया, as in how did you lay the foundation for it? Who did you contact in China? Who did you contact? How did it work? As in start किस तरह हुआ? The starting was from Mr. Zheng Guojin. He was the culture consulate in Karachi. Now he is, mashallah, I think ambassador in somewhere in the world. So he is a very kind person. अच्छा, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 79 में मैं पहली दफ़ा चाइना गया, whereas my father is going to China since 1973. एक साल में को 10 एक दफ़ा तो वो जाते ही. How come? Because we have our business over there. Oh, okay. मतलब even at moment हमारे we have 4 departments, out of which 3 departments are only doing business with China.
एक मेरा डिपार्टमेंट है, आई एम इन द टेक्सटाइल रॉ मटेरियल्स, 80% is with China. My father is dealing in the crockery and hardware, it's 80% China. If you go to the audio equipment, like the last Corolla had our audio equipment. अच्छा. Totally. So that is also from China, because now all the world has set up their factories in China. जी. And they are exporting from that. तो चाइनीज कॉन्सुलेट में वैसे भी आना जाना रहता था 80s में भी. इत्तेफाक से जो ये कल्चर कॉन्सुलेट आए अराउंड 85 के में इनकी तैनाती हुई थी, और उसको उर्दू भी बड़ी अच्छी आती थी, और ही रियली हैड द लव फॉर हिज जॉब ऑल्सो. तो ही आस्क्ड मी कि बजाय इसके कि हम अपनी पर्सनल मुलाकातें करें, और ये व्हाई नॉट टू हैव अ एसोसिएशन so that we can also focus on both the thing, either the culture from Pakistan and the culture from China. उस वक्त तक तो यही हमारा मूड था, जो I was not so much experienced in the business. जी. हमने उसमें काफ़ी एक्टिविटीज़ की, मतलब ऑन द नेशनल डे तो आज 20 साल हो गए जी. एवरी नेशनल ऑन द चाइना नेशनल डे हम पाकिस्तान में सेलिब्रेट करते हैं. प्लस चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ ऑल्सो लाइक, जैसे हम चांद देखकर अपना हर साल ईद मनाते हैं, ऐसे ही चाइना भी जो उनके महीने चल रहे हैं वो भी चांद से ही चलते हैं. तो दैट्स कॉल्ड चाइना ल्यूनियर ईयर. इस साल जो उनका चाइनीज ल्यूनियर, दैट इज फॉर द डॉग. तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस साल भी मनाया उनके साथ. लास्ट ईयर मंकी था, आई थिंक. लास्ट ईयर मंकी था जी. तो ये उस जमाने की हमारी एक्टिविटीज थी. फिर 86 से मैंने बहुत ही रेगुलर, मतलब 6-7 दफ़ा साल में जाना मैंने वहाँ शुरू कर दिया, और जो डेवलपमेंट वहाँ देखी, आप यकीन कीजिए कि मैं डिप्रेस, मतलब आज भी डिप्रेस्ड हूँ कि वो मुल्क 1949 में वजूद में आया, और 1952 में पाकिस्तान ने उसको 50,000 रुपए डोनेशन दिया था. तो जस्ट इमेजिन कि जिस मुल्क को हमने डोनेशन दिया हो वो आज कहाँ है और हम आज कहाँ हैं. यही सारी बातें मेरे जहन में रहीं. फिर इत्तेफाक से चाइनीज़ का कमर्शियल कॉन्सुलेट्स जो हैं, रियली दोज पीपल, हियर आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग व्हिच इज नॉट सब्जेक्ट ओवर हियर, बट आई लाइक टू नो दैट द पीपल शुड नो. If we compare the commercial consulates of Pakistan and if we compare the commercial consulates of any other world, especially for China, you can see a big difference. Our commercial consulates are going there, but no achievement have been done. Even in China, now Zafar Saab is there, he is doing a little bit achievement, but for the last 25 years, whoever was the commercial consulate did nothing for the export, growing export from Pakistan. All right. But you see their commercial consulates really, मैं एक लफ्ज़ कहा करता हूँ जो कि सारे चीनों के लिए है, कि जब भी मेरा कभी इंटरव्यू हुआ है, को अखबारी में बयान दिए हैं कि रियली चाइना हैज़ द लव फॉर देयर नेशन, व्हिच वी डोंट हैव. If we have the love for we have an individual love. We are very patriotic, but we don't actually implement that patriotism, if you know what I mean. मतलब हम इमोशनल बहुत हो जाते हैं पाकिस्तान के बारे में, मगर जब वक्त आता है to do something about it physically or to actually make a difference, we don't really do very much. That is for the limited time, as we have seen in the earthquake. That was a very, आज कोई भी दोबारा earthquake पे बात करने को तैयार नहीं. नहीं, वही तो मैं आपको कह रही हूँ कि वो हम लोग उस वक्त बड़े इमोशनल हो जाते हैं, मगर जब एक्चुअली फिजिकली काम करने का वक्त आता है तो जितनी देर मीडिया और बाकी सब लोग देख रहे होते हैं तब तक वी वर्क, और 2 मिनट जैसे ही फोकस खत्म होता है पीपल लूज इंटरेस्ट. यू आर वेरी राइट. बहरहाल जी, हमने फिर मैंने सोचा कि क्यों ना पाकिस्तान को, ठीक है पाकिस्तान नोज वेरी वेल चाइना इज द बेस्ट फ्रेंड इन द वर्ल्ड, लेकिन जो हमारे आम लोग जो हैं, आज भी मैंने अभी 2004 में एक एग्जीबिशन